Hello, dear students. Welcome to Divya Brahmalok Global Academy. I'm your value education teacher, Vedahi ma'am, and today we will be doing some writing work in chapter number 4, The Two Pots. So, get ready with your pen and paper. So, this is your textbook, The Salt in Life for Class 7 Value Education and Life Skills, in which we had discussed chapter number 4, The Two Pots, in our part 1 of video lessons, which is based on the value of self-esteem. Means you should be confident about yourself, you should love yourself, whatever qualities are there within you, nobody else is having that quality, so you should be proud of yourself, है ना? आई होप यू रिमेंबर, ये लड़का था शंभू जिसके पास 2 पॉट्स थे. वन वॉज अ न्यू वन एंड द अदर वन वॉज अ ब्रोकन ओल्ड वन, है ना? एंड बट बिकॉज ऑफ दिस ओल्ड ब्रोकन pot, as you can see, this was indirectly watering the seeds, indirectly watering the plants. और उन प्लांट में से देखो कितने ब्यूटिफुल फ्लावर्स लगे, और तब उसको ये पॉट को एहसास हुआ. शंभू ने पॉट्स को समझाया कि खामखा उदास नहीं होना चाहिए. यू शुड लव योर सेल्फ. एवरीबडी इज स्पेशल, एवरीबडी इज हैविंग सम क्वालिटीज विच अदर्स मे नॉट हैव, सो यू शुड हैव कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन यू. ये वाला हमने चैप्टर डिस्कस किया था. So let's continue with our part 2 for chapter number 4, The Two Pots, in which we will be discussing true or false and some other things as well. See, there is one beautiful song given on your page number 16 of your textbook, Believe in Yourself. What it says? Believe in yourself and you can achieve things you never thought possible. Believe in yourself and you can discover new talents hidden inside you. Believe in yourself and you can reach new height that you thought immeasurable. Believe in yourself and you can elucidate the problems that define every solution. Believe in yourself and you can tackle the hardest of all situations. Believe in yourself and you can make the complicated things seem simple. Believe in yourself and you can enjoy the beauty of the nature's creation. Believe in yourself and you can learn skill of gaining knowledge from experience. Believe in yourself and you can discern new depths in your life. Believe in yourself and you can perform way beyond your expectations. Believe in your aim and work towards it with elation, determination and dedication. Believe in yourself and you will feel blessed as you are God's special creation. कितना अच्छा सॉन्ग है ये, रिटन बाय सागर सतपथी. ठीक है, ये आप भी सॉन्ग गाना और उसके मतलब को समझना. देखो सब जगह एवरीवेयर इट इज सेड दैट यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, दैट यू कैन अचीव समथिंग. अब तक जो आपको इम्पॉसिबल लगता था, अगर आप अपने में विश्वास रखोगे, यू विल फाइंड इट, द थिंग्स विल हैपन इन अ वेरी नेचुरल वे. ठीक है, आप उसको पॉसिबल कर सकोगे, आप किसी भी चीज़ को टैकल कर सकोगे, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आपको आसान लगने लगेगी, ओनली इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ. वाई? बिकॉज यू आर गॉड्स स्पेशल क्रिएशन. देर इज नो अदर पर्सन गॉड हैज मेड. आपके जैसा भगवान ने किसी को नहीं बनाया. यू आर स्पेशल. ठीक है, सो what are the things we should include in our life? From this chapter we get to know that self-esteem lies in recognizing our own strength and using them for the betterment of everyone. Self-esteem, खुद पे भरोसा, खुद पे विश्वास, खुद पे गर्व, उससे क्या होगा?
मतलब कि जब आप में वो होगा, यू विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग, आप खुद आइडेंटिफाई कर सकोगे आपके स्ट्रेंथ क्या है, एंड देन you can use your strength for other work. It can be for good of others and it can be good for your own development also. I will help my parents and grandparents, which is a good habit. I will work hard in studies and develop my skills so that in future I would be able to lead a dignified life. देखो, अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में आपको कोई रिस्पेक्ट करे, आप अच्छी पोजीशन पे पहुंचो, ठीक है, तो अभी आपके पास जो समय है, यू शुड यूटिलाइज दैट टाइम इन स्टडिंग हार्ड, मीन्स यू शुड डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू शुड डेवलप योर स्किल्स, नई नई चीज़ें आप सीखो, देन एंड ओनली देन योर फ्यूचर विल बी ब्राइट. आई विल शेयर द वर्क ऑफ माई पेरेंट्स, है ना, बिकॉज यू आर मच मोर एनर्जेटिक देन योर पेरेंट्स. तो अगर आप अपने पेरेंट्स को हेल्प करोगे, देन योर पेरेंट्स विल हैव मोर टाइम टू स्पेयर विथ यू. सो ये सब आपको करना चाहिए. एंड बेस्ड ऑन दिस, सी देर इज वन कॉलम माई कमिटमेंट. तो इस लेसन से आपने क्या सीखा, ठीक है, और आप अपने आप को क्या प्रॉमिस करते हो ये लेसन सीख के, वो यहाँ आप अपने व्यूज अपने हिसाब से लिखेंगे, ठीक है. एज ऑफ नाउ वी विल बी डिस्कसिंग पुट अ टिक इन बॉक्स इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड क्रॉस इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स. अभी हम ये करेंगे. सी द स्टेटमेंट्स. आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ एंड दिस इज अ ट्रू सेंटेंस. आप जैसे हो, आप अपने आप को उसी तरह से आप अगर स्वीकार करोगे, सो आप अपने आप में खुश रहोगे. आई फील वैल्यूड एंड नीडेड. येस, आपको खुद को अपनी वैल्यू करनी चाहिए. यू शुड गिव इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ. और आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को मेरी ज़रूरत होगी, बट ये तभी होगा व्हेन यू वैल्यू योर सेल्फ. I know my plus point. I don't need other people every time to say I have done a good job. Not so. This is a good answer. Means this is a good habit. कि you should know not only your plus point but आपको आपके minus point भी पता होने चाहिए, ठीक है. प्लस पॉइंट में ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई आपको शाबाशी दे तो ही आपको समझ में आए. नहीं, आपको पता होना चाहिए क्या प्लस पॉइंट है आपका और क्या नेगेटिव पॉइंट है. I always speak up for myself and make my views clear. Yes. You should be straightforward. आपको जो भी व्यूज़ हैं वो आपको साफ शब्दों में बोलना चाहिए, कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए. I don't feel guilty about saying or doing what I want. See, आपको जो भी चाहिए या आप चाहते हो वो आपको क्लियरली बता देना चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए. बट येस, आपको कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए जिससे दूसरों का नुकसान हो. सो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है. आई डोंट लूज हार्ट, आई फेल सम टाइम और द अदर बट आई कीप ऑन ट्राइंग. दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट कि यू शुड नेवर स्टॉप ट्राइंग. चाहे कितनी भी फेलियर्स आ जाए, यू शुड कीप ऑन ट्राइंग. अ डे विल कम व्हेन यू विल सक्सीड. सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. I enjoy meeting people and spending time with them. I never hide my true feelings and this is a very good habit. सबको हर किसी से मिलना चाहिए, ठीक है. आपको अकेलेपन से कोई फ़ायदा नहीं होगा. मतलब आपनो यू शुड enjoy your own company but at the same time you should enjoy other person's company because they are also special और उनमें से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है. सो ऑल द स्टेटमेंट गिवन ओवर हियर आर ट्रू. वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स एंड न्यू वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, बाय बाय.